Hey everyone, welcome back to my channel. I'm doing great. So, if you've been following this series, you know I have already covered 15 parts of this PYQ series. If you haven't watched them yet, make sure to check them out. The links are in the description. Today, we are moving on to part 16 of the series. So, there's one more thing, like we have already completed 200 questions of this series, still part 14. So I have compiled all the 200 questions into a PDF which is now available on my Telegram channel जिसका नाम है Study Sociology. The link is in the description. So don't forget to join the channel for all the study materials, all the discussions, updates. Alright, so let's begin with today's first question, that is question number 216. Which of the following sociologists have contributed significantly to the study of reflexive modernization? A. Ulrich Beck, B. Anthony Giddens, C. Zygmunt Bauman, D. Jürgen Habermas. Here are the codes. You have to answer this question from these codes. इनमें से रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन की किन किन सोशियोलॉजिस्ट ने बात करी है? The correct answer is Ulrich Beck, Anthony Giddens and Jürgen Habermas. Zygmunt Bauman रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन की बात नहीं करते हैं. उल्रिक बेक और एंथनी गिडन्स ने रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, वेयर दे एक्सप्लेन्स दैट हाउ मॉडर्न सोसाइटीज बिकम सेल्फ अवेयर ऑफ रिस्क्स, एंड यागन हेबरमास ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय डिस्कसिंग रैशनैलिटी इन मॉडर्नाइजेशन और मॉडर्निटी थ्योरी. That is, the correct answer is A, B and D. Alright, moving forward to question number 217. According to Antonio Gramsci, which of the following elements are essential in the formation of cultural hegemony? Option A, intellectuals and their role in society. Option B, the economic base determining consciousness. Option C, the ideological control of institutions. Option D, the coercive power of the state. अगेन कोड्स हैं, आपको इन कोड से आंसर करना है. कल्चरल हेजिमनी जो एंटोनियो ग्राम्शी का कॉन्सेप्ट था, उससे क्वेश्चन है. कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंटेलेक्चुअल्स एंड देयर रोल इन सोसाइटी. लाइक आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन जैसे कि मीडिया, एजुकेशन, वो सारा कल्चरल हेजमनी में आता है. ऑप्शन सी, अ मिक्स ऑफ परसुएशन एंड कोअर्जन, द आइडियोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस. एंड ऑप्शन डी, द कोअर्सिव पावर ऑफ द स्टेट plays a role but is not the core ideas. That is A, C and D is correct. तो कल्चरल हेजिमनी जो है वो ये आर्ग्यू करते, एंटोनियो ग्राम्शी ये आर्ग्यू करते थे इस थ्योरी से, दैट एलीट्स कंट्रोल कल्चर थ्रू इंटेलेक्चुअल्स. क्वेश्चन नंबर 219. Which of the following scholars have critically analyzed the impact of surveillance in modern society? Option A, Michel Foucault. Option B, David Leon. Option C, Shoshana Zuboff. Option D, Nicholas Luhmann. Question number 219. Surveillance, impact of surveillance. किन किन scholars ने analyze किया है? द करेक्ट आंसर इज़ मिशेल फुको. ऑब्वियसली उन्होंने सबसे पहले सर्विलांस की थ्योरी, सर्विलांस के बारे में बात करी है. उनकी थ्योरी का नाम क्या था? पैनोप्टिकन थ्योरी, वेयर ही एक्सप्लेन्स हाउ सर्विलांस शेप्स बिहेवियर. डेविड लियोन नेक्स्ट फोकसेस ऑन डिजिटल सर्विलांस इन डेली लाइफ. और शोशना जुबॉफ, इन्होंने सर्विलांस कैपिटलिज्म दिया था. Surveillance, capitalism. The correct answer is A, B and C. Option 3. Moving forward to question number 220.
Arrange the following sociologists in chronological order based on their major theoretical contribution. Option A, Auguste Comte. Option B, Karl Marx. Option C, Max Weber. Option D, Erving Goffman. ऑप्शंस जो हैं आपके थोड़ा ऊपर नीचे हो गए. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4. आपको इससे आंसर करना है. क्वेश्चन नंबर 220. ऑलराइट, द करेक्ट आंसर इज A, B, C एंड D. ये ऑलरेडी ऑर्डर में था. ऑगस्ट कॉम ने क्या थ्योरी दी थी? पॉजिटिविज्म. 1 सेकेंड. कार्ल मार्क्स ने हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म. डेवलप्स क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी. उसमें सबसे पहले जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो ऑगस्ट कॉम्ट हुए. कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है. मैक्स वेबर ने फेमसली ब्यूरोक्रेसी, रैशनलाइजेशन इन सब की थ्योरी दी थी, जहाँ पर उन्होंने कैपिटलिज्म को क्रिटिक किया था इन थ्योरीज में. और फिर आखिरी में आते हैं अर्विंग गॉफमैन, जिन्होंने सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म की थ्योरी दी थी, जहाँ पे ही स्टडीड सोशल परफॉर्मेंस. Question number 221. Which of the following sociologists are associated with the concept of social imaginaries? ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था. कल लास्ट वीडियो में भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं. ऑप्शन ए, चार्ल्स टेलर. ऑप्शन बी, कॉर्नेलियस कास्टोराइडस. ऑप्शन सी, पियर बूर्दो. ऑप्शन डी, बेनेडिक्ट एंडरसन. क्वेश्चन नंबर 221. सोशल इमेजिनरीज का कॉन्सेप्ट किन किन थिंकर्स से एसोसिएटेड है? द करेक्ट आंसर इज A, B एंड D. चार्ल्स टेलर, कॉर्नेलियस कास्टोराइडस एंड ऑप्शन डी, बेनेडिक्ट एंडरसन. दैट इज A, B एंड D. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. क्वेश्चन नंबर 222. In Pierre Bourdieu's theory, which of the following are components of cultural capital? Option A, embodied capital. Option B, objectified capital. Option C, symbolic capital. Option D, institutionalized capital. देखो, जो कॉर्नेलियस कास्टोराइडस हैं और चार्ल्स टेलर हैं, इन्होंने सोशल इमेजिनरीज का, दे बोथ हैव डेवलप्ड दिस कॉन्सेप्ट. लेकिन जो बेनेडिक्ट एंडरसन है, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट से एक हमको थ्योरी दी थी जिसका नाम था इमेजिन्ड कम्युनिटी. Imagined communities where he explained nationalism as a social construct. और सोशल इमेजिनरीज से वो ये एक्सप्लेन करते हैं, ये दोनों, दैट शेयर्ड बिलीव्स जो हैं वो सोसाइटी को शेप करती थी. जो भी हमारे शेयर्ड बिलीव्स, शेयर्ड आइडियाज़ हैं, कल्चर है, वो एक शेप देता था हमारे सोसाइटी को. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 222 का आंसर दीजिए. कल्चरल कैपिटल पूछा जा रहा है. द करेक्ट आंसर इज A, B एंड D. एम्बॉडीड कैपिटल, objectified capital and institutionalized capital. Bourdieu never talked about symbolic capital. So Bourdieu के cultural capital में 3 फॉर्म्स आते हैं. आप ऐसे याद रखिए. E, जहाँ पर embodied में skills, knowledge आएगा. objectified, जहाँ पर books, art ये सब आएगा. और institutionalized, Bourdieu ने education की बात करी है, राइट? EOA. तो institution में educational degrees सब आ सकते हैं. Question number 223. Which of the following statements accurately describe Immanuel Wallerstein's world system theory? Option A, the world is divided into core, semi-periphery and periphery regions. Option B, capitalism operates as a global system with unequal relationships. Option C, the economic structures of different countries change over time. Option D, the theory rejects Marxist perspectives on capitalism. क्वेश्चन नंबर 223 इमैनुअल वॉलरस्टीन की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से क्वेश्चन है. वेरी इजी क्वेश्चन. देखो, सबसे पहले तो उन्होंने
कोर, सेमी पेरिफेरी एंड पेरिफेरी रीजन्स, इसकी बात करिए. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, राइट. इन कोड्स में, इन तीन कोड्स में ऑप्शन ए आ रहा है. फिर कैपिटलिज्म ऑपरेट्स एज अ ग्लोबल सिस्टम विद अनइक्वल रिलेशनशिप्स. ये एक कोई पर्टिकुलर कंट्री के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, ये ग्लोबल सिस्टम की बात करिए ना, ये थ्योरी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी. सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन सी is also correct. The economic structure of different countries change over time. That is A, B and C. He explains that capitalism exploits weaker nations but he does not reject Marxist perspective. So that is why option D is incorrect. This is the reason option D के साथ हम नहीं जा रहे हैं. He never rejected this Marxism. क्वेश्चन नंबर 224, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है. कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं आपको, ये आपके थिंकर्स हैं, इससे आपको मैच करना है. रिस्क सोसाइटी, डिसिप्लिनरी पावर, नेटवर्क सोसाइटी, सिंबॉलिक कैपिटल. उल्रिक बेक, मिशेल फुको, मैनुअल कैसल, पियर बूटो. द करेक्ट आंसर इज, देखो ये ऑलरेडी मैच्ड है. डिसिप्लिनरी पावर, मिशेल फुको, नेटवर्क सोसाइटी, मैनुअल कैसल. अभी हमने सिंबॉलिक कैपिटल ऊपर देखा था, देखो वहाँ पर क्या था, कल्चरल कैपिटल में आपसे पूछा जा रहा था. कल्चरल कैपिटल में सिर्फ ये तीनों आएंगे. सिंबॉलिक कैपिटल की, कल्चरल कैपिटल में बूर्दो नहीं बात करते हैं. सिंबॉलिक कैपिटल से बूर्दो ने हमेशा स्टेटस और प्रेस्टीज समझाया था. 1, 2, 3 एंड 4. रिस्क सोसाइटी से जो उल्रिक बेक है वो मॉडर्न रिस्क, जो भी टेक्नोलॉजिकल रिस्क, क्लाइमेट चेंज, ये सब की बात करते हैं. डिसिप्लिनरी पावर एक्सप्लेन सर्वेलांस, जो मिशेल फुको की थ्योरी थी. नेटवर्क सोसाइटी, मैनुअल कैसल का, वो हमेशा डिजिटल एज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 225, विच ऑफ द फॉलोइंग आर की फीचर्स ऑफ उल्रिक बेक्स कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क सोसाइटी. अभी हमने रिस्क सोसाइटी का कॉन्सेप्ट देखा. Option A, globalization increases unpredictably. Option B, modernization creates new man-made risks. Option C, risk perception shapes political and social responses. Option D, traditional social classes determine risk exposure. Very easy question. The correct answer is A, B and C. Globalization increases unpredictability. Modernization creates new man-made risks. And risk perception shapes political social responses. So Ulrich Beck की जो risk society थी, this theory states that globalization makes risks worldwide. वो किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं करते, पहली चीज़. दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमेशा न्यू डेंजर्स क्रिएट करता है. और जो ऑप्शन सी है, रिस्क परसेप्शन शेप्स पॉलिसीज. और जो सोशल क्लास है, इट अफेक्ट्स रिस्क बट इज नॉट सेंट्रल. ट्रेडिशनल सोशल क्लासेस डिटरमाइन रिस्क एक्सपोजर. इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. Question number 226. Which of the following scholars have worked on the idea of liquid modernity? देखो ये ऑप्शन ए ये है, Zygmunt Bauman. ऑप्शन बी, एंथनी गिडेंस. ऑप्शन सी, डेविड हार्वी. ऑप्शन डी, पियर बूर्दो. लिक्विड मॉडर्निटी से हमको हमेशा क्या पता चलता है? अनस्टेबल सोसाइटी. तो किन किन थिंकर्स ने इसकी बात करी है? जिगमंड बोमन तो वी नो, इन्होंने लिक्विड मॉडर्निटी की थ्योरी दी थी. दूसरे कौन से थिंकर हैं? डेविड हार्वी, पोस्ट मॉडर्निटी, एग्जामिन्स रैपिड इकोनॉमिक चेंज. और तीसरे पियर बूर्दो, जिन्होंने हैबिटस की थ्योरी दी थी, वेयर ही एक्सप्लेन्स पावर एंड कल्चर. दैट इज ए, सी एंड डी. एंथनी गिडेंस से कोई लेना देना नहीं है लिक्विड मॉडर्निटी की थ्योरी में.
अगेन करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है हमको. इन कुछ थिंकर्स हैं, इनके वर्क के हिसाब से हमको क्रोनोलॉजी में आंसर देना है. कुछ ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गए हैं, अंडरलाइन कर देती हूँ. ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4, ये कोड्स हैं, आपको इससे आंसर देना है. मिशेल फुको का डिसिप्लिन एंड पनिश. यागन हेबमास द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फेयर. ऑप्शन सी पियर बोर्डो डिस्टिंक्शन. ऑप्शन डी शोशना जुबोव का द एज ऑफ सर्विलांस कैपिटलिज्म. टू 27. द करेक्ट आंसर इज, पब्लिकेशंस हम देख लेते हैं कौन से ईयर में क्या पब्लिश हुआ है. देखो, मिशेल फुको की जो डिसिप्लिन एंड पनिश है वो आई थी 1975 में. फिर यागन हेबमास हैं, इन्होंने पब्लिक स्फेयर की थ्योरी दी थी. ये बुक पब्लिश करी है 1962 में. पियर बोर्डो का जो डिस्टिंक्शन है वो आता है 1979 में. और शोशना जुबोव की जो सर्विलांस कैपिटलिज्म थ्योरी है, इस बुक में उन्होंने उस थ्योरी की बात करी है. आई थी सबसे लास्ट में 2019 में. दैट इज़ पहले आता है हमारा बी, ऑप्शन बी यागन हेबमास. दैट इज़ ऑप्शन 1, B, A, C and D. All right. Question number 228. Which of the following sociologists have critically analyzed capitalism and its effect on labor and inequality? एक तो थिंकर बहुत ईजी हैं, आपको पता होगा. A. कार्ल मार्क्स, B. डेविड हावी, C. इमैनुअल वॉलस्टीन, D. गाय स्टैंडिंग. गाय स्टैंडिंग की थ्योरी हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ी है. द करेक्ट आंसर इज A, C and D. कार्ल मार्क्स तो ऑब्वियसली होंगे, लेबर इनइक्वालिटी इन सब की बात कार्ल मार्क्स करते हैं. डेविड हावी से कोई लेना देना नहीं है. इमैनुअल वॉलस्टीन कोर और पेरिफेरी, ये सब उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन की तो बात करी. और गाय स्टैंडिंग का हमने कल कौन सी थ्योरी पढ़ी थी? प्रिकैरिएट, जहाँ पे उन्होंने अनस्टेबल लेबर क्लास की बात करी है. इमैनुअल वॉलस्टीन की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, कार्ल मार्क्स का कैपिटलिज्म क्लास स्ट्रगल. Question number 229. Match the following question. Gender performativity, Judith Butler. Time space compression, David Harvey. Hegemonic masculinity, R.W. Connell, Rowan Connell. Imagined communities, Benedict Anderson. Correctly match करना है आपको. The correct answer is option 1. ये सारे orderly matched हैं. So, gender performativity में Judith Butler argues that gender is always performed in our society. Time-space compression, which was given by David Harvey, he shows globalization speed इस theory से. कैसे हम आजकल की modern world में चीज़ों को जल्दी कर लेते हैं. एक जगह से दूसरे जगह मैसेज ट्रांसमिट करना होता है, हम कितनी जल्दी कर लेते हैं. ट्रैवल करना होता है, हम कितनी जल्दी ट्रैवल कर लेते हैं, एट्सेट्रा. हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी से R.W. कॉनेल एक्सप्लेन्स डोमिनेंट मेल रोल्स. और इमेजिन कम्युनिटी से बेनेडिक्ट एंडरसन ने नेशनलिज्म की बात करी है. आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 230. विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट हैव studied the impact of digital surveillance on privacy and individual autonomy? A. Shoshana Zuboff, B. David Leon, C. Anthony Giddens, and D. Mark Andrejevic. मैं हमेशा मार्क एंड्रेजेविक के नाम से कंफ्यूज हो जाती हूँ. द करेक्ट आंसर इज A, B and D. So शोशना जुबोफ का अब भी हमने पढ़ा सर्वेलांस कैपिटलिज्म, वेयर शी वार्न्स अबाउट डेटा एक्सप्लॉयटेशन. डेविड लियोन स्टडीड डिजिटल सर्वेलांस. और मार्क एंड्रेजेविक ने फोकस किया था जो रियलिटी टीवी, AI, फोकस ऑन रियलिटी टीवी, सर्वेलांस कल्चर, AI, इन सब पर.
that is A, B and D. Alright, so that's all for today. There's one more thing which I want to add. There's this PDF which I have created for you all for your preparation for UPSC, NET, JRF या कोई भी competitive exams. So the original price is ₹199. लेकिन कुछ लिमिटेड टाइम के लिए इस PDF का जो प्राइस है इज़ ₹99, जहाँ पर मैं 50% डिस्काउंट दे रही हूँ आप लोगों को. सो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो एक्सप्लेनिंग ऑल द डिटेल्स. चेक दैट वीडियो आउट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. सो ऑलराइट, that's all for today. Meet you guys in the next video. Also, don't forget to like, share and subscribe to this channel. Thank you guys.